So in the given question, it is written that P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1:4:2:3. There are four partners, they are going to share their profits and losses in ratio 1:4:2:3. On 1st of April 2016, they decided to change their profit sharing ratio and decided to share the future profits and losses equally. On the particular date, that is on 1st of April 2016, they were having a balance sheet in which capital account shows a balance of 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh and 5 lakh as in capital balance of P, Q, R and S respectively, whereas other liabilities were sundry creditor and workman compensation reserve. And in the asset side, there were two types of asset, fixed asset and current assets. This is the balance sheet of P, Q, R and S on 1st of April 2016 on the same date when they want to change their profit sharing ratio. Clear? So on that particular date they want to change their profit sharing ratio. So after that they decided to share the future profits equally. They decided to share the future profits equally. After that they were having a goodwill of the firm which is being valued on the 1st of April 2016 is of 2,70,000. The partners also decided or agreed on the following terms. First one, the claim against workmen compensation reserve was estimated at 2 lakh. Against that particular claim, they were having a workmen compensation reserve of 1,70,000. That means the amount of claim is greater than the amount of reserve. So the 30,000 would be considered as an additional amount of expense which is being beared by the old partners in their old profit sharing ratio, as the 30,000 is the amount of excess claim over workmen compensation reserve available with the respective partners. And the second point is the point relates to the adjustment of capital. What the second point says is capitals of the partner were to be adjusted according to the new profit sharing ratio of the partners by bringing or giving cash as the case may be. जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैश लाना है किसी पार्टनर से या किसी पार्टनर को कैश पे करना है, वो पार्टनर कैश लेकर जाएगा. तो ये हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड on that particular date on 1st of April when they want to reconstitute their profit sharing ratio, on the same date they want to change their partners capital account as well. They want that the balance in their partners capital account should be as per their profit sharing ratio. Means they decided that the firm's total capital would be rupees say 10 lakh. So as per their profit sharing ratio 1:1:1:1, all four partners should be having a equal capital in their capital account. So 2,50,000 for one partner, 2,50,000 for second partner, same for third and same for fourth. All four should have a equal capital at the end of the reconstitution. That is on 1st of April 2016 on the date of reconstitution. Here, this is the question. Now we are going to understand the solution. What would be the solution for that particular question? क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या बनता है, हमें क्या करना है, हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझेंगे इसके अंदर. इस क्वेश्चन का मैं आपको एक बार शेयर कर चुका हूं, अभी भी आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, वो अदर पार्ट पर आप उसे देख सकते हैं और उस क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा. नाउ as per the given question, first we have to prepare revaluation account. In revaluation account there is a single adjustment, एक ही एडजस्टमेंट है और वो एडजस्टमेंट क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 1,70,000 का है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम उसके अगेंस्ट में 2 लाख का है. So the excess amount of claim which we have to pay to that workman, the same is being contributed by the old partners in their old profit sharing ratio. So the excess amount of 30,000 is to be contributed by who? Old partner. 1
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, अमाउंट कितना 30,000। दिस 30,000 कहां से आया? 2 लाख रुपए का हमारे पास क्लेम है, 1,70,000 का हमारे पास रिजर्व है, 30,000 अभी भी क्लेम हमारे पर एक्सीड है। ये आपको फिर से मैं रिवाइंड करा देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इसको समझा कि ये क्या होगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ समझ लेना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने पढ़ा था कि जब भी अगर क्लेम रिजर्व से एक्सीड करेगा तो एक्सेस अमाउंट को हम रिवैल्यूएशन में लेकर जाते हैं, जिसकी एंट्री ये लिखेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ आएगा 1,70,000, यहाँ आएगा 30,000 और यहाँ आएगा टोटल क्लेम ऑफ 2 लाख। ये चीज हमें मेंशन करनी है। तो यही एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 30,000। उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कौन हो रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 से। यही मैंने यहाँ पर लाकर क्लोज किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट किया और अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 30,000 से। इसे मेंशन करने के बाद अलावा हमारे पास और कोई अगर रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज का कोई पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ एक सिंगल क्लेम के साथ, सिंगल वैल्यू के साथ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो जो भी लॉस ये 30,000 का देखने को मिल रहा है, 30,000 के लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पुराने पार्टनर होंगे और वो उनके पुराने रेशियो। पार्टनर कौन कौन है? P, Q, R, S। ओल्ड रेशियो क्या है? 1, 4, 2, 3। न्यू रेशियो क्या है? 1, 1, 1, 1। ओके ना, तो 30,000 का जो भी लॉस है वो किसमें बटेगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम P, Q, R एंड S। टोटल अमाउंट 30,000। टोटल अमाउंट 30,000। This 30,000 is being contributed by whom? P, Q, R and S in their old profit sharing ratio 1, 4, 2, 3. Means 3,000, 12,000, 6,000 and 9,000. So total amount is 30,000, which is being distributed by the old partners in their old profit sharing ratio. 30,000 is being distributed by old partners in their old profit sharing ratio 3,000, 12,000, 6,000, 9,000 respectively. 1:4:2:3. Now, after this, we have to prepare partners capital account. For partners P, Q, R, S. P, Q, R, S. Particulars P, Q, R and S. Particulars P, Q, R and S. 4 पार्टनर का डेबिट साइड, 4 ही पार्टनर की क्रेडिट साइड। फिर से याद दिलाता हूँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। ये है हमारे ओपनिंग बैलेंसेस। अब हम अगली स्टेज जो हमारी, ये स्टेप आप याद कर लेना बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी प्रिपेयर करोगे, कुछ लिमिटेड स्टेप जो हम कभी भूले ना, वो हमें याद होने चाहिए। पहली स्टेप पर हम ओपनिंग बैलेंस उतारते हैं, दूसरी स्टेप पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस को उतारेंगे, तीसरी स्टेप पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ही
कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ तो उसे नोट करेंगे। चौथी स्टेप की प्रीवियस बैलेंस शीट जिसके बेसिस पर हम रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, उस बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई रिजर्व है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पांचवी स्टेप कि उस बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये 5 स्टेप आपको याद रखनी है। और छठी स्टेप आएगी गुडविल का एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की होगी वो हमारी 6th स्टेप है। ये 6 स्टेप हमारे को हमेशा याद होनी चाहिए। ये 6 स्टेप हमें किसी भी कंडीशन में नहीं भूलनी है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन और कोई डिमांड करता है तो वो एडिशनल है। अदरवाइज ये 6 स्टेप का एडजस्टमेंट हमेशा दिमाग में याद रखना है कि 1 to 6 एडजस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस उतारो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस उतारो, रिवैल्यूएशन में अगर कोई डेबिट क्रेडिट अगर कहीं भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो रहा है तो उसे नोट करो, एक्यूमुलेटेड रिजर्व अगर कोई है तो उसे नोट करो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कोई है तो उसे नोट करो, और गुडविल का एडजस्टमेंट जो हमने वैल्यू की है ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, उसका एडजस्टमेंट एंट्री जो है उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें पास करना पड़ेगा। इन 6 चीजों को हमें कभी नहीं भूलना है जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले स्टेप पर मैंने ओपनिंग कैपिटल उतारा, दूसरी स्टेप पर मैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉसेस को उतार रहा हूं, तो उसके लिए लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लेके। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कौन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मुझे यहां पर इस बार प्रॉफिट नहीं है, मुझे इस बार लॉस है, तो प्रॉफिट नहीं है और लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन इस साइड में मेंशन नहीं करूंगा। ठीक, तो यहां मेंशन करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पी के अंदर अमाउंट आएगा 3000, क्यू के अंदर अमाउंट आएगा 12000, आर के अंदर अमाउंट आएगा 6000 और एस के अंदर अमाउंट आएगा 9000। ये मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने मेंशन किया, उसके बाद आप देखोगे कि और कोई रिजर्व हमारे पास बचा है क्या। हमारे पास रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो तो मैंने आपको यहाँ जनरल एंट्री लिखकर बताई थी, उसमें हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। तो हमने ये एडजस्टमेंट तो कर दिया कि हमारी जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम यहाँ पर कैरी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल, अपना वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल का फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो आ रहा है आपका टोटल गुडविल जो क्वेश्चन में गिवन है हमें, वो है 2,70,000, 2,70,000 की गुडविल हमें गिवन है। आप इसमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उसे निकालने के लिए फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसे माइनस करने के बाद जो पॉजिटिव आएगा वो गेनिंग पार्टनर होगा, जिसका नेगेटिव आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। जब इस वर्किंग को हम करेंगे तो हमें मिलेगा कि P 6/40 से गेन कर रहा है, Q 6/40 से सैक्रिफाइस करेगा। P 6/40 से गेन करेगा, Q 6/40 से सैक्रिफाइस करेगा। फिर कैलकुलेट करते हैं R और S का। R का हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 2/40 से गेन करेगा और S 2/40 से सैक्रिफाइस करेगा। तो हमारे पास दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये वर्किंग हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, P is capital debit, R is capital account debit, to Q is capital, to S capital। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 6/40 P में, 270 मल्टीप्लाई बाय 640 Q में, 270 मल्टीप्लाई बाय 2/40 R में, और वही अमाउंट S में। इस जनरल एंट्री को हम पास करेंगे तो P और R में जो अमाउंट जा रहे हैं
P डेबिट और R डेबिट। P में अमाउंट आपका जाएगा 40,500, 13,500, 40,500, 13,500। अब इसकी पोस्टिंग आपको मेंशन करनी है कि आपकी इसकी पोस्टिंग कहां पर होगी। क्लियर? तो हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, P की कैपिटल को डेबिट करना है और R की कैपिटल को डेबिट करना है। अगेंस्ट पे क्रेडिट होंगे Q और S, या लिखेंगे बाय P एंड R कैपिटल अकाउंट। Q कितने से क्रेडिट हो रहा है? 40,500, तो Q के क्रेडिट में लिख दिया 40,500। S कितने से क्रेडिट हो रहा है? 13,500। इन द सेम में यहां मेंशन करोगे टू Q एंड S कैपिटल अकाउंट। कौन डेबिट हो रहा है? P और R। P कितने से डेबिट हो रहा है? 40,500। R कितने से डेबिट हो रहा है? 13,500। ये हो गई हमारे सारे एडजस्टमेंट जो हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। इन सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद अब हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक को आज हम समझ रहे हैं। अब इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले पार्ट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये फाइंड आउट करना है कि अभी इनका हाल फिलहाल बैलेंस कितना आ रहा है। वो बैलेंस निकालने के लिए टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट, whichever the total is higher, the same is to be recorded and the same has been taken for the next side for calculating the balancing figure। तो हम ये करने के लिए सबसे पहले उसी पुराने वर्किंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, या तो इस वर्किंग पर चले, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी एडजस्टमेंट हुए उनको टोटल में माइनस करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लें और उसके बाद आपको फाइनल एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ऐसा करने का भी एक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें बैलेंस शीट की स्टार्टिंग में दे रखी थी, वो थी 14 लाख रुपीस। कितने लाख रुपए? 14 लाख रुपए हमें बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में दे रखा था। 14 लाख में से हमने दो ही एडजस्टमेंट यहाँ पर किए हैं। दो एडजस्टमेंट क्या किए? एक तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस, वो कितने का था? 30,000 का। तो 14 लाख में से 30,000 माइनस कर देते हैं, वो आएगा 13,70,000। दूसरा एडजस्टमेंट किया हमने ये वाला, जिसमें पार्टनर ही डेबिट हो रहा है, पार्टनर ही क्रेडिट हो रहा है। दैट मींस देयर इज नो इंपैक्ट ऑन टोटल कैपिटल। मैं क्वेश्चन पे सवाल किस पे खड़ा कर रहा हूँ कि क्या कोई इंपैक्ट टोटल कैपिटल पर हो रहा है क्या? तो इस वाली कंडीशन में कैपिटल के ऊपर, टोटल कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पे कर रहा है। अल्टीमेटली वो पैसा फर्म के अंदर ही पड़ा हुआ है। फर्क इतना सा रह गया कि उसके ऊपर ओनरशिप पहले के कैपिटल राइट्स उस पर पार्टनर के थे, अब मेरे हो गए। तो यहाँ अल्टीमेटली वो पैसा है कहाँ पर? फर्म में। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इस एंट्री से टोटल कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं है। टोटल कैपिटल पर इंपैक्ट सिर्फ इससे है कि 30,000 रुपए की कैपिटल हमारी यहाँ पर कम हो जाती है। तो टोटल कैपिटल पहले कितनी थी? 14 लाख। 14 लाख में से 30,000 की कैपिटल निकाल देते हैं तो वो आती है 13,70,000। ये 13,70,000 की कैपिटल चारों पार्टनर P, Q, R और S 1:1:1:1, दैट मींस इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 13,70,000 रुपए का बैलेंस इनका आना चाहिए। तो मुझे ये पता है, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। पैसा कौन लाएगा, पैसा कौन ले जाएगा, उससे रिलेटेड एक लाइन छोड़कर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, कि मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता लग गया कि 13,70,000 टोटल फर्म की कैपिटल है, जिसको चारों पार्टनर इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मींस मुझे क्लोजिंग कैपिटल का आइडिया लग चुका है, जो आएगी 3,42,500 पर पर्सन। 342,500, 342,500, 342,500 एंड 342,500। ये टोटल कैपिटल इसका 14 लाख, जिसमें से 30,000 का यहाँ लॉस नजर आ रहा है, ये माइनस कर दिया तो 13,70 की कैपिटल बनती है। एक कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट ये भी है, लेकिन इससे टोटल कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, इसलिए सिर्फ 30,000 माइनस हुए, 13,70 को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 4, तो वो आता है 342,500 पर पर्सन। तो पर पर्सन की कैपिटल 3,42,500 बनती है। इसके अकॉर्डिंग हम इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये है हमारी टोटल। अब आप टोटल मेंशन करेंगे तो पता लगेगा कि आर और एस को पेमेंट देना पड़ेगा।
ठीक, क्वेश्चन के अंदर कैश का बैलेंस पड़ा है, बैंक का कुछ नहीं दे रखा, करंट एसेट है। ठीक, तो टू कैश अकाउंट मेंशन करते हैं, टोटल लगाते हैं। इधर की तो 2 लाख है, इधर की ज्यादा आ रही है, 3 40 80 3 85 500, इधर की टोटल 3 54 500, उधर की टोटल ऑब्वियसली 4 लाख है, तो यहाँ 4 लाख आएगी। उधर की टोटल 5,13,500 है, वो मेंशन होगी, क्योंकि यहाँ की टोटल है 4 लाख 5,13,500, और ये वाली दोनों टोटल यहाँ लिखी जाएगी 385,500 354,500। ये है यहाँ तक की वर्किंग, जिसको आप देखते हैं। तो ये बैलेंसेस हमारे निकले हैं पार्टनर्स कैपिटल के 385 500, सॉरी 500 ये हो 386 3,86,500 और 3,86,000 इसको दिया। तो ये टोटल हमारे हो गए 3,86,000, दूसरी टोटल हो गई 354,500, तीसरी टोटल 4 लाख और 5 लाख 13,500। बैलेंसेस निकलेंगे तो वो आएंगे 38,000, ये तीनों की टोटल में से 4 लाख में से ये तीनों की टोटल माइनस करोगे तो 38,000 का बैलेंस बचेगा। दूसरा हम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आएगा 1,62,000। ये कैश हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो कैश लाएंगे, कैश ही ले जाएंगे, तो यहाँ पर कैश विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है 342,500, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल 4 लाख है, लेकिन रिक्वायर्ड 342,500 ही है। तो जो एक्सेस कैपिटल है वो हम 38,000 रुपए एक्सेस बन रहे हैं, सारे खर्चे हटाने के बाद, लॉस हटाने के बाद, तो 38,000 ये विड्रॉ करके ले जा सकते हैं। वही दूसरा एस का हम जब फिर देखेंगे तो 5 लाख कैपिटल थी, लेकिन अब रिक्वायर्ड 342,500 है। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को मीट आउट करने के बाद 1,62,000 एक्सेस है जो वो विड्रॉ कर सकते हैं। इन द सेम वे हम पी और क्यू का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी और क्यू में 1,86,000 और 14,000 का कैश उन्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये दोनों ही हमारे लिए अब बैलेंसिंग फिगर है, दोनों कैश अकाउंट। तो आप पी कितना लेकर आएगा 1,86,000 और इनका 14,000। ये है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। या फिर आप इसकी वर्किंग को क्या कर सकते हैं, टोटल लगाएंगे, इधर की टोटल आएगी 2 लाख, इधर की टोटल लगाओगे तो वो आएगी 386, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मेंशन करोगे, फिर डिफरेंस अमाउंट को इस साइड में 18,600 का में तो वो मेंशन कर दिया जाए। आप कैसे भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3,42,500 इसमें से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, नहीं तो आप इन टोटल कैपिटल को सब में से माइनस करके फाइनल बैलेंस निकाल कर भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है इसी क्वेश्चन का, जो वो मैं आपको कल की क्लास में, जिससे हम ये 342,500 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको कल की क्लास में एक बार और क्लियर कर दूंगा कि इसको हम सेकंड वे में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। एक तरीका तो वो बताया मैंने, सेकंड मेथड एक और है जिसको मैं आपको कल फिर से इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है, उससे मैं आपको कैलकुलेशन करना बता दूंगा, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, तो आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके पास अवेलेबल है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको कल करके बताऊंगा। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन इस फिगर तक पहुंचने का मैं आपको कल एक और अगली नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्लियर करूंगा। उसके बाद हम उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू।